अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay. Chalo, we'll start with the lecture. I'm just about to start the lecture. Okay. Yeah. We are not going to do too many things right now. We'll just be going through one sum, and it will be a very easy sum for all of you. And I'll share with you another sum, and I would like you to at least go through that sum. I will not share raise hand. Who has raised hand? Murtuza, भूल से हुआ. Murtuza,
मुर्तुजा हाथ नीचे करो. Okay. Let everyone come. I'm just going to solve one question so that we at least get a feel. There are two more questions. At least there are 10 more questions of formulation which are very different from each other. But today we won't take all that questions. We will just take one question, single question, and I will share a pic with you of another question that I would expect that you will try to solve. Okay? Not in the lecture. You will try to think about that question and we will automatically consider how to solve it in the next lecture. And if you can do it yourself, that will be more than enough. But I would recommend that you don't use book for any of these questions. You do it by yourself. You fail, that is okay. But if you use book, trust me, it won't help you. It won't help you. It will be more like copying, because the more you see the book, the more you feel comfortable with the subject. But you won't get that, you won't get that things from your side, that how to solve and how to crack the questions. Okay, so I'll just share the screen with you. Chalo, we'll start with this. First of all, yeah, we will do with this question first. Okay, I'll just put myself somewhere. This is asked in May 16. Okay, formulate and solve LPP. We will think of if we want to solve it. If we want to solve it, we will even give it a try to solve. Okay, after formulating. So we will go through this question right now. Yeah, it is connected. You can see, I think everyone has entered the classroom. 19 are only there. Okay. Okay. बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है यार इसमें, सच्ची. वो लेक्चर ऑनलाइन से बेटर था ऑफलाइन. ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही? किसको नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है कि नहीं सबको? ये कौन है यार? वकास को आवाज नहीं आ रही. वकास कनेक्ट करो, ज्वाइन ओवर इंटरनेट रहता है, वो कनेक्ट करो. ओके, हाउ मेनी पीपल हैव ज्वाइंड? ओनली 19. वो आएंगे बीच में, फिर पूछेंगे. ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. और सीरियसली नहीं जमता यार ऑनलाइन. मतलब आप, हमारी भी मजबूरी हो गई, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है. पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली नहीं है. मैंने भेज दिया था उनके मायके वाइफ को, तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे टाइम मिल रहा है पढ़ाने को. नहीं तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू लिटरली टीच ऑनलाइन. आई एम गेटिंग अ स्पेस राइट नाउ एट माई होम. So that is the reason we can at least try, but it is very difficult right now. Okay, so if any error comes from any one of us or from any faculty, you rather understand those things, because it is initial. It will take 2 weeks time for everyone to get adjust to it. Once we get adjust to it, you will be able to see more creative content from our side. Okay, we'll just start with this question. Okay, so what is given in this question is, where is my screen? Yeah, what is given in this question is a chemical manufacturing company produces two products A and B. I think you will be very clear by now that something which is getting manufactured, that should be what? That should be my decision variables. Okay, so what are my decision variables? Two products that are manufactured, product A and product B. So I already know, and you should already know, that since we are going to manufacture this, whatever might be the question, you can see at the end in the question, find the quantities of A and B to be produced in the next week, blah, blah, blah. Whatever is mentioned, you don't have to worry to maximize the profit. This word is important. If this word is not given, you have to see through the question. What is the condition? You can see product A gives a profit of 18 rupees per unit. Product B gives a profit of rupees 15. So already you know, since it is profit, so your objective function should be of maximization type. And one more thing, since this is maximization type, your all conditions, since it is a word problem, this is not a mathematical problem, it is a word problem. So in a word problem, all conditions should be less than equal to for maximization. If it would have been for minimization, all condition would have been greater than equal to. If it is mathematical equation, it might have both the things, but since it is a word problem, we should be able to get all the conditions less than equal to for maximization. So we are being told to maximize something which we call it as Z. Okay, and since we are told to maximize, and we know, we can even see it in the table that there are two products. I'm not reading the question because I hope you're getting what I'm trying to say. Whatever you're getting, you can directly write with your confidence level. If you're confident enough, you don't need to read the question.
whole question. You can just write whatever, because if you read off the whole question, what becomes in OR difficult, what becomes difficult in OR is you try to analyze a lot of things. So whatever you analyze, and if you are very sure this is right, write it down. That would be very better. Okay, so what we can write is, let x1 and x2 be the number of products A and B that is manufactured by the company. Okay, so what we can write, we will try to find if there is some condition. Okay, the processing time, what is mentioned is each product passes through three processes. So we can see the three processes. So I hope you are able to understand these conditions are called what? This is called constraint, and this will be called this part. This will be called as what? This thing will be called as decision variable. Okay. So we know there are two decision variable, and since constraints are written this way, so what we have to write? We have to write availability on this side. So we have to see if there is some availability condition given. Yeah, we have read the question. There are three processes, two products. Each process is taking this much times in hours. This is given times in hours. So this all are times in hour. So product A takes 2 hours, product B takes 5 hours for process 1. Similarly, it takes 7, 2 for process 2, and it takes 4 and 3 for process 3 respectively, for product A and B respectively. Okay. So the total duration for which each process is available in a week are 30, 24 and 20 hours respectively. You can see that this value is in hours, constraint value. If it is in hours, then availability should also be in hour. So you can see the total duration for which the product is available in a week. What is the duration? It is 30, then it is 24, then it is 20. Okay. Okay, so what we can do directly is we can write, since 2 into x1 is product A for process 1. I'm writing this constraint equation for process 1. 2 into x1 plus 5 into x2. It should be less than, even if we don't know, since we know maximization and total duration is given in hours, so we cannot exceed that much hour. Okay, so if we cannot exceed that much hour, let me find where is my pen. So this will be equal to 30 for process 1. If I want to write it for process 2, what I'll write is 7x1 plus 2x2 is less than equal to what? Is less than equal to 24. And for, if I want to write it for process 3, what I'll write is 4x1 plus 3x2 is less than equal to 20. Okay, we also know, since these are products, x1 will be greater than equal to 0, and we even know that x2 will also be greater than equal to 0. So we have already formed the function. What do we need to write? Something more that we need to write? Yeah, we need to write objective function. So what is the objective function? Maximize z. Since only profit is given, I already explained you in the last lecture, profit or loss or cost or revenue or everything, whatever is there, you need to find everything. And if it is with respect to profit, then what you have to write is maximization. So what you'll write maximization, it gives 18 rupees. You can see here, A gives 18 rupees per product and B gives 15 rupees per product. So we are going to manufacture X1. So X1 into 18 plus what we will get is X2 into 15. So what you are going to get, Z max is what? 18 x1 plus 15 x2. This was a very simple question. Okay, I hope everyone understood. Is there any doubt? You can raise it in the chat box. If you're not having any doubt, let me continue. Just put a message in the chat box if you're comfortable with this question. Should we proceed? Okay. 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 Thank you. Don't put the message. It's okay for me now. We have already completed this question. I wanted to solve this question. So what we will do is we will try to solve this question. Okay. We will just solve this question right now. Actually, I am not that much comfortable for drawing graphs with this. I need to practice it, but I will try. I want to solve it. There are two methods to solve. I will show you both the methods. Initially, I will try to solve it by graphical method. Then there is also a simplex method. We can even try for simplex method. Okay. I'll just give it a try. It might be that I might not be able to draw it properly, but since you
have a lot of time today, we will give it a try. See what is being asked. One second. How come this? Just let me see. Yeah. Draw. 1 second. Huh? What is asked from us? We are being asked to find the quantities of A and B. Okay. We have been asked to find the quantities of A and B to be produced so as to maximize the profit, and we are being told to solve it by simplex method, but I will try to solve it by graphical method. Graphical method comes in the exam for 10 marks. It is a sure shot question, but right now what I can say, after 2 to 3 years of teaching this subject, it was used to be a sure shot question, but this question is basically very important to understand the concept. It depends upon mood of examiner, but if it comes and if you're not able to solve it by graphical, you'll directly get 0, because if they have told that don't use simplex, use graphical, so you should know what is graphical method. It is very simple. Direct second year student might find it a little new, but it is very simple. I'll just explain you. First, I'll write the question. Maximize Z is equal to, what is the Z? Yeah, 18x1 plus 15x2. There is some subject to condition. Subject to condition, what are the conditions here? 2x1 plus 5x2. Since it is maximization and availability, we are sure about availability. Since available time is there, so it cannot exceed this, so we will put less than equal to. Okay, second condition is 7x1 plus 2x2 is less than equal to 24. Yeah. Third thing, 4x1 plus 3x2 is less than equal to 15. Okay, we have been asked to solve, so we will solve it by another method, which is a graphical method. Why I'm doing graphical method? Because you will get the same answer from both the methods. It's very important that you understand graphical method at start. Hasnan, any doubt? Just put it in chat box if you are having any doubt, Hasnan. Okay, 20 is equal to 20, not 15. Okay. Yeah, Allah, I have to delete everything. Yeah, I'll put it again. So sorry. What is the condition? 4x1 plus, you can raise your hand because I am not viewing the chat constantly. You raise your hands if I am doing any mistake with regard to value, I'll just change it. Okay. So 4x1 plus 3x2 is less than equal to 15. We have written the condition. Two conditions are more there. x1 is greater than equal to 0. Non-negativity restriction. x2 is greater than equal to 0. So we need to solve it by graphical method. For solving it by graphical method is only possible. Kya ho gaya, Ashfaq? Have I written something wrong? Okay, 20. Again, I have put the wrong value. Okay, I'll change it. I got it. Just let me know. फिर से 15 लिख दिया. ओके वेट, सॉरी, मेरा ध्यान कहाँ है? हाँ, वो उस पर है. सॉरी, I'll just put it by cancelling. You can understand. Yeah, I am getting it. चलो मैं लिख देता हूँ वहाँ पर. This is 20. Okay. Now we will proceed. ग्राफिकल मेथड कब यूज करने का? आपने कभी थर्ड एक्सिस देखी है ग्राफ में? नॉर्मली आई थिंक किसी ने थर्ड एक्सिस नहीं देखी होगी ग्राफ में. ग्राफ में बेसिकली आप कितनी एक्सिस देखते हैं? कौन है यार चैट पे? क्या हुआ, ज्यादा ही लिख रहे हो? इज इट फाइन? या सो आपने ग्राफिकल मेथड, जब मैं बात कर रहा हूं तो याद रखना, ग्राफिकल मेथड में सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस हो सकती है. ठीक है, तो जब 2 एक्सिस हो सकती है, इसका मतलब ये है कि ग्राफिकल मेथड आप तभी यूज करेंगे. एक सेकेंड. हाँ, ग्राफिकल मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास 2 ही वेरिएबल रहेगा. 1 सेकेंड. ओके, 1 सेकेंड. Graphical method can only be used when you are having 2 variable. Okay, अगर प्रोडक्ट A प्रोडक्ट B है, इट्स ओके टू यूज ग्राफिकल मेथड. बट अगर सपोज करो एक और प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट C भी होता, तो हम इसको ग्राफिकल से नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ग्राफिकल में एक बार में कितनी एक्सिस बना सकते हैं? 2 एक्सिस बना सकते हैं. तो अगर 2 वेरिएबल क्वेश्चन है तो ग्राफिकल से सॉल्व कर सकते हैं, और तभी करना जब एग्जाम में बोला जाएगा. ओके, दूसरी चीज, पहली चीज ये चेक करो. दूसरी चीज क्या करो?
जो लीनियर प्रोग्रामिंग में कंडीशंस रहती है ना, वो इनइक्वालिटी फॉर्म में रहती है। इक्वल जब रहेगा तो हम जानते हैं इक्वल टू आएगा, इनइक्वालिटी मतलब या तो लेस देन इक्वल टू रहेगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, क्लियर नहीं रहेगी। तो जब भी इनइक्वालिटी रहेगा तो सबसे पहला स्टेप चेक करने के बाद कि ग्राफिकल से सॉल्व होगा या नहीं, पहला स्टेप रहता है हमारा, हमने 12th में किया है ये, 12th स्टैंडर्ड जानते हैं अच्छे से, ओके। पहला स्टेप क्या रहता है, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। सबसे पहला काम यही है, इनइक्वालिटी को किस में कन्वर्ट करो, इक्वेशन में। तो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनइक्वालिटी। तो कन्वर्ट कैसे करना, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू दिया है ना, इक्वल टू 30 लिख दो, बस हो गया कन्वर्ट, ओके। अब जब ये लिख दिया, दूसरी कंडीशन भी लिख देते। क्या कंडीशन है, 7x1 प्लस 2x2 क्या रहेगी कंडीशन, इक्वल टू 24। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, 4x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली इक्वल टू लिख दो, ठीक है। अब देखो x1 2x1 है ना, तो x1 में इसको 30/2 लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। फिर दूसरा क्या लिख रहा हूँ मैं, x2, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, 30/5 डिवाइड कर रहा हूँ मैं, और न्यूमरेटर में जो 2 और 5 है उसको डिनोमिनेटर में ले आया। तो ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अब दूसरी देखते हैं, x1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 24/7 प्लस x2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 24/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। लास्ट कंडीशन x1 क्या आ जाएगा, 20/4 प्लस x2 क्या आ जाएगा, 20/3 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। मैं इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने ये इक्वेशंस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया, क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, सॉरी, ओके, जस्ट पुट माई वीडियो ऑन दिस साइड। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है अब, तो हम ये काम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड ना, या ये हमने कर दिया इतना। अब हमको क्या करना है वो देखते हैं, ओके। अब ये इक्वेशंस जो हमने लिख दिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखेंगे, x/15 प्लस x1 सॉरी x1/15 प्लस x2 बाय क्या लिखेंगे, 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1। दूसरा x1 24/773 3.2 I think 3.28 what I am getting. Even if it is not right, it's okay. Don't put it in the chat box. इतना चलेगा। x2 बाय क्या आ जाएगा, 12, x2 बाय 1 सेकेंड यार, सो सॉरी, x2 बाय क्या आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू 1, और नेक्स्ट x1 बाय आ जाएगा 5, साथ में हो जाएगा x2 बाय 6.67 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। आपको ये लाइंस है, ये एक्चुअल में क्या है हमारे पास, ये जो है ना, ये लाइंस है ना, पहले इनइक्वालिटी थी, हमने इक्वेशन में बना के, ये लाइन की इक्वेशन है। तो अगर मुझे ये लाइन को प्लॉट करना है तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, लाइन को प्लॉट करने के लिए बेसिकली मुझे चाहिए रहेगा एंड कोऑर्डिनेट्स। क्या चाहिए रहेगा, एंड कोऑर्डिनेट्स। तो एंड कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसीलिए मैंने ऐसे लिखा। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दिस इज ऑल्सो सिंपल। एंड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सपोज करो मैं पुट करता हूँ x2 की जगह 0। तो जब मैं x2 0 पुट करूंगा तो x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, आई होप यू गेटिंग, x1 विल बी इक्वल टू व्हाट, 15। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 15,0। कौन सी एक्सिस पर है ये, x एक्सिस पे कट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब अगर मैंने x1 की जगह पुट किया 0, x2 वैसे ही रहने दिया, x1 की जगह पुट किया 0, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 6 हो जाएगा या नहीं। तो ये हो गया मेरा y कोऑर्डिनेट। तो मेरे 2 कोऑर्डिनेट मिल गए या नहीं ये लाइन से। वैसे यहाँ पर अगर मैं x2 की जगह क्या पुट करूंगा, 0, तो व्हाट आई विल गेट इज 3.28, 0 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0,12। नेक्स्ट इसमें भी वैसे ही, जैसे मैंने x1 0 पुट किया तो मुझे x2 मिला, वैसे ही x2 मैंने वापस क्या पुट किया, 0, तो व्हाट आई विल गेट हियर इज 5,0, और साथ में क्या मिलेगा, 0,6.67। you put it in the chat box if you're getting, just write one statement. Is everyone getting, put some, you can put it, okay, can I proceed, okay, thank you, we will proceed, okay। नेक्स्ट क्या करना है देखते हैं। हमने ये कोऑर्डिनेट्स, लाइन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर दिए, ठीक है। बेसिकली हमने लाइन के कुछ कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने फाइंड कर दिए, ये हमारे लाइंस के कोऑर्डिनेट है। मुझे सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। चलो समझ के ले लो, ठीक है। पहली चीज़, पहला कोऑर्डिनेट कितना है, 15,0, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर है,
और एक और कोऑर्डिनेट क्या है लाइन का 0,6। तो ऐसे एक मैंने लाइन बना दी माशाल्लाह। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या है 15,0 और बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 0,6। ओके, आपको स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी आप रफ बना सकते हैं, ग्राफिकल बनाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान देना 15 जैसे बड़ा होना चाहिए। ये गलती कर दी आपने तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लाइन सीधी बननी चाहिए, तो नहीं तो बहुत इशू हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लाइन की इक्वेशन क्या थी वो याद करनी पड़ेगी यार। डू आई हैव दैट क्वेश्चन? आई हैव टू गो एंड फाइंड दैट क्वेश्चन वंस अगेन। लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x1 + 5x2 = 30। ओके, तो ये जो लाइन है ना, ये जो हमने लाइन लिखी है इसके ऊपर लिखो, हमेशा लिखो, यहीं पे लिखो 2x1 + 5x2 = ना, तो अब इक्वल टू हटा दो, क्या था लेस देन था ना, लेस देन था, तो लेस देन 30 लिखो, इनइक्वालिटी में वापस लिखो। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी वैल्यू है ना ये लाइन के नीचे की साइड है। लेस देन का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन? टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगा या नहीं, तो ऐसे सिंबल बना दो, लाइंस के एंड में क्या करो आप ऐसे सिंबल्स बना दो। इसका मतलब है कि ये लाइन पे जो भी वैल्यू है ये इनइक्वालिटी में नहीं आने वाली, अपनी लाइन के नीचे ये जो वैल्यू है ना इसके नीचे जो भी वैल्यू है ये सब हमारी कहाँ आने वाली है, इनइक्वालिटी में। और क्योंकि लेस देन है तो ये किस साइड जाएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सेकंड 3.28, सपोज दिस इज 3.28, oh my god 0,12, suppose here it is 0,12 suppose, and this is 3.28,0, and let this be, so sorry let this be 0,12. okay, I am plotting the second line, तो second line की जो भी इक्वेशन है, second line की कुछ इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या थी देखना पड़ेगा, इक्वेशन क्या थी second line की, 7x1 + 2x2 = 24, तो we will put that value 7x1 + 2x2 24 लेस देन था या नहीं, तो लेस देन 24 पुट करूंगा। अब फिर लेस है तो ये किस साइड जाएगा बेटा, ये लाइन भी टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगी या नहीं, तो दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी मैंने टुवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट देखते हैं 5,0 एंड 0,6.67, तो 6.67 और इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा या नहीं, तो यहाँ पर एक और लाइन आएगी या नहीं। ये वैल्यू क्या है 5,0 और ये वाली वैल्यू क्या है 0,6.67, तो मैंने सब वैल्यूज ड्रॉ कर दिया नहीं। फिर से ये टूवर्ड्स है तो ये भी यहाँ पर आ गया है नहीं, मेरे से गलती हो गई, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बनाए, पर थोड़ा सा समझ के लो, ग्राफिकल मेथड बताना सबसे डिफिकल्ट है, तो मैंने सब लाइंस को टूवर्ड बना दिया। क्या हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो गई कि कुछ कंडीशंस बची है? कैन एनीवन लेट मी नो? आई एम आस्किंग एवरीवन, हैव वी पुट ऑल द कंडीशंस ऑन द ग्राफ? आई हैव अनम्यूटेड यू। No, no, no. व्हाट आर रिमेनिंग? Negativity restriction. No negativity restriction. Very nice, very nice. Just 1 second. Now listen, we have put all the conditions, but we have not put two conditions which were very important. What are those conditions? I'll let you know. Just let me use this properly. 1 second, huh? I'll just put those conditions. और दो condition थी. Where is my cursor? और दो कंडीशन थी, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था या नहीं, और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था या नहीं। अब x1 इज इक्वल टू पता है आपको 0 किसकी एक्सिस रहेगी? अब देखो ये x1 एक्सिस है या नहीं, मेरी x एक्सिस को x1 बोल रहा हूँ, और ये वाली जो मेरी एक्सिस है कौन सी एक्सिस है, x2 एक्सिस है या नहीं। तो x1 इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस रहेगी या नहीं, करेक्ट। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या रहेगा, x1 इज इक्वल टू 0, और x2 इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन रहेगी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर मैं ये दोनों कंडीशन नहीं यूज करता तो देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, नीचे से बाउंड है या नहीं। देखो x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन बताया मैंने, x1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो ये जो है ना x1 इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन है, करेक्ट। अब ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x1 पॉजिटिव रहेगा या नहीं। आपको पता है x1 की राइट साइड भी रहता है, लेफ्ट साइड भी रहता है, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इट विल शिफ्ट टू विच साइड, राइट हैंड साइड। सिमिलरली आपको पता है ये मेरी x2 एक्सिस है, सॉरी ये मेरी x1 एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, x2 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब मुझे पता है ये ग्रेटर देन है, तो x2 ग्रेटर कहाँ रहता है, अबव या बिलो, y एक्सिस कहाँ ग्रेटर रहती है, ऊपर के साइड ग्रेटर रहती है या नहीं, तो ये हो गया या नहीं। तो अगर मैं देखूँ तो देखो मैंने ये एरोज बनाई या नहीं, ये एक एरो, ये एक एरो, यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर एक एरो, ठीक है। अब देखना है हमको ये जितने भी एरोज बन गए ना ये सबका कॉमन रीजन क्या है।
तो अगर ध्यान दे, ये किस साइड जा रहा अंदर की तरफ, ये किस साइड जा रहा अंदर की तरफ, ये किस साइड जा रहा अंदर की तरफ, ये किधर जा रहा ऊपर की तरफ, और ये किधर जा रहा, ये वाला x1 इज इक्वल टू किधर जा रहा 0, x1 इज ग्रेटर देन 0 राइट की तरफ। तो अगर मैं सबका कॉमन रीजन देखूं, कौन एनोट कर रहा है, रोको, अरे बाबा रोको, मुझे दिख रहा है तुम्हें आता है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, ये क्या हो गया मेरा कॉमन रीजन, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या फाइंड किया, कॉमन रीजन, जिसको हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं हम, फीजिबल रीजन। तो वी हैव फाउंड आउट द फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है वो मैं बताता हूँ। फिजिबल रीजन जो रहता है ना, आपको जो इक्वेशन से फिजिबल रीजन मिला है उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करो। मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। देखो अब मुझे ये जो फिजिबल रीजन है ना, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, अगर ये मैंने ठीक से नहीं बनाया होता तो प्रॉब्लम होता, पर मैंने अप्रोक्सीमेटली सही बनाया। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब क्या है, मेरे कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए मुझे, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। ओके, अब चारों कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। तो ये कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो दिख के आ रहा है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी दिख रहा है, यानी कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, ये है कि नहीं, तो दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल गया या नहीं, 3.28,0। तीसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट भी मिल रहा है या नहीं, क्या है कोऑर्डिनेट, ऊपर वाला नहीं है, नीचे वाला है ना ये वाला। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0,6। वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू वरी, यू विल गेट टू द आंसर। लास्ट ये वाला कोऑर्डिनेट देखना है। अब ये कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना, ये वाली जो लाइन थी ना, ये दिख रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन है, ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन, ये लाइन नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं जब भी क्वेश्चन लिखो ना, तो पहले ही उसके ऊपर इक्वेशन लिख दो। लाइन पे जब आप इक्वेशन लिख दोगे ना, तो अगर आपने लाइन पे इक्वेशंस लिखा है तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा लाइंस को, नहीं तो बाद में इक्वेशन ढूंढने जाओगे तो बहुत डिफिकल्टी होगा। ओके, तो अब सबसे पहले हमको ये देखना है, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली लाइन, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना हमारी। तो ये वाली लाइन की इक्वेशन कुछ थी या नहीं, देखो ये इक्वेशन है। ओके, तो ये इक्वेशन है एक लाइन की। दूसरी लाइन दिख रही है ये वाली, ये लाइन है हमारी, तो इसकी भी इक्वेशन थी या नहीं कुछ, ये कुछ इक्वेशन थी या नहीं। तो मुझे दोनों इक्वेशन पता चल गई, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे दोनों इक्वेशन पता चल गई, मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दूंगा। और क्योंकि ये जो पॉइंट है दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है दोनों का, तो जब मैं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, ये दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो वाला कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा, एक्स वाई जो भी वैल्यू रहेगी, वो भी मुझे क्या होगा, मिल जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, हम इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x1। अब इनइक्वालिटी में मत लिखो क्योंकि आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। प्लस 5x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 7x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24। ओके, आपने ये दोनों लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए चैट बॉक्स में किसका आंसर क्या आ रहा है। डोंट हैव कैलकुलेटर, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम ओके, साइन वेव बन गया थोड़ा सा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके बताइए जल्दी। What is the value of x1 and x2 for this corner point? Is it right? Check. Please confirm. चेक करो, चेक करो। 1.9, 5.22. Okay. Okay. Stop the chat box. We can start with this question now. What is the value that we are getting? 1.9 and 5 point. Is it right? I have not solved it, huh? Okay, 1.93. Okay. Okay. One second. Okay. तो अब हमको वैल्यूज मिल गई। तो अब हमको क्या करना है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद है, z का जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मुझे अभी याद भी नहीं है, और इसका कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स।
ठीक है, तो पहले लिखने का कॉर्नर पॉइंट्स और फिर लिखने का z, ठीक है, और हमको z में क्या करना है, मैक्सिमाइज, क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या कहता है, 0,0। एक बार z देखते हैं, z क्या था, मुझे याद भी नहीं है z क्या था, z क्या था, 18 और 15, ओके। तो यहाँ लिख देता हूँ z मैक्स की कंडीशन क्या है, 18x1 प्लस 15x2, ओके। तो अब पहले पॉइंट 0 0 डालूंगा तो z क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 3.28,0, तो 3.28,0 डालूंगा तो 18 इंटू 3.54 अराउंड कुछ आंसर आएगा, 55 56, आई डोंट रिमेंबर इट, ठीक है। देखते हैं क्या है, आई थिंक इतना ही रहेगा, देखते हैं क्या है, क्या आंसर आ रहा है, देखता हूँ मैं बाद में तुम्हारे चैट देखता हूँ। और क्या बचा, तीसरा कॉर्नर पॉइंट 0,6, जब 0,6 डालेंगे तो देखो कितना आ रहा है, z 90 आ रहा है या नहीं, क्योंकि x की जगह कितना गया, x1 की जगह 0, इसके जगह कितना गया 6। लास्ट क्या बचा 1.93, 1.93 और क्या है 5.22, पुट करके देखते कितना आ रहा है z। लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, एनीवन, z कितना आ रहा है, z वो सेम आ जाएगा, महलाम टेंशन मत लो। किसका है, इल्ताम, लाइन अलग आ रही है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं श्योर हूँ लाइन करेक्ट है, एक बार चेक कर लेता चाहिए तो। नहीं यार लाइन एकदम करेक्ट है, चांस ही नहीं है लाइन अलग है। $113.04, ठीक है। तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस इज, what we are getting from this is 113.04. So we have found the maximum value. So we were asked to find what should be the quantity. तो 1.93 प्रोडक्ट होना चाहिए x1 का, और x2 का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 5.22, so that the company gets a profit of how much, 113.04 rupees. Okay, okay. Now I would like to ask people some question. I am unmuting you and I would request you to answer me. Is everyone available? Yes. Yes, sir. बताओ ये 1.93 करेक्ट है, Yes, sir. टेक्निकली करेक्ट है क्या, Hello. No. टेक्निकली करेक्ट है, कोई बना सकता है 1.93 प्रोडक्ट नहीं सर, नहीं। No. और 5.22 sir. बना सकता है, No. मतलब तुम 1.93 की जगह सिर्फ 1 बना पाओगे कि नहीं, तो वेस्ट कितना कर रहे हो तुम यहाँ पर, 0.93. 93. हो रहा है, दूसरे वाले में कितना वेस्ट हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही. 0.22. 0.22 वेस्ट हो रहा है। 0.22. Yeah. Now listen. Mute yourself. Mute yourself. आवाज नहीं आ रही. अरे आवाज बराबर है मेरी. सर आवाज नहीं आ रही. Listen. Now is it visible? Is it clear? Yes, sir. Now listen to me. Yes. इसका मतलब ये है, एकदम सिंपल टर्म्स में देखा जाए कि आप प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छा खासा वेस्ट कर रहे हैं, और आप अगर ये सोच रहे हैं मैं एक ही प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक प्रोडक्ट अगर बनाओगे इसका और इसके कितने प्रोडक्ट बनाओगे, 5 प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, बट आप इसको लार्ज स्केल पे चालू करोगे ही करोगे ये कंडीशन को, ठीक है। तो जब आप चालू करोगे तो आप लॉस जो रहेगा ना, लॉस, एक सेकेंड यार मेरा वो कहाँ गया, लॉस जो आप बियर कर रहे हैं ना यहाँ पे 0.93 और 0.22 बियर कर रहे हो, तो इसके वजह से ना ये जो LPP है ना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ओके। इसीलिए इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी वेस्टेज नहीं होने देता और फिजिबल करता है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ऑप्टिमाइज जो हुई है सॉल्यूशन, इससे भी ज्यादा ऑप्टिमम सॉल्यूशन कौन देता है, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देता है, जो कि क्या करता है, इसको होल नंबर में भी इसको 2 में कन्वर्ट कर दे, मे बी इसको 6 में कन्वर्ट कर दे, या मे बी इसको 5 या 4 में कन्वर्ट कर दे, इसको 0 में, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ये 0 हो जाए, ये 6 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उस तरीके से फिजिबल करेगा सॉल्यूशन को, ताकि हमको होल नंबर मिले, क्या मिले, इंटीजर मिले, और इंटीजर कैसा मिले, पॉजिटिव मिले, ओके ओके। तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि इसको तो हमने सॉल्व कर दिया,
बट अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से इसी क्वेश्चन को हम और क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं और ज़्यादा करेक्ट कर सकते हैं. ओके, इज इट फाइन? Everyone understood the concept of this integer programming also? Yes, sir. Okay, okay. We'll go to the next question now. Thank you. We will go to the next question. बेहतरीन, ठीक है. ये क्वेश्चन देखो, आ रहा है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन. सिर्फ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन ही रखता हूं मैं थोड़े टाइम के लिए. ये किसने नोट किया उसको बोलो डिलीट करे कम से कम. ये क्वेश्चन अच्छे से देखना. हाँ, हमने अभी वो लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लेक्स मेथड से नहीं किया बेटा, हमने सिर्फ उसको ग्राफिकल से किया क्योंकि पॉसिबल था ग्राफिकल से करना. अब ये क्वेश्चन देखते हैं और हम अपना लेक्चर एंड करते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है. अ कंपनी, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ लेदर बेल्ट. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबको बेल्ट पसंद है. ठीक है, कंपनी 2 तरीके के लेदर बेल्ट बना रही है, ए और बी. बेल्ट ए जो है ना वो सुपीरियर क्वालिटी का है, और क्या बोल रहा है, बेल्ट बी जो है ना वो इंफीरियर क्वालिटी का है. मतलब एक बेल्ट है जो सुपीरियर का, जो नौशाद पहनता है, ठीक है, और एक बेल्ट है जो इंफीरियर क्वालिटी का है, माशूक पहनता है. ठीक है ना. अब देखिए, द प्रॉफिट फ्रॉम, नौशाद है सर. लिसन, द प्रॉफिट नौशाद है ना. है नहीं, कहाँ चला गया होगा, सुन रहा होगा वो, है नहीं क्या वो? सर माशूक भी नहीं है सर. किसी नहीं है. अब देखो, द प्रॉफिट फ्रॉम द 2 आर ₹40 and ₹30. मतलब जो नौशाद बेल्ट पहन रहा है ना, उससे कंपनी को जो फायदा हो रहा है वो 40 रुपए हो रहा है. जो माशूक पहन रहा है इंफीरियर क्वालिटी का और उसका दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उससे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितना हो रहा है, ₹30 हो रहा है इंफीरियर क्वालिटी में. ठीक है. ईच बेल्ट ऑफ टाइप ए, इतना पढ़ लिया हमने. बेसिक चीज क्या पता चली कि बेल्ट बन रहा है 2 तरीके का, एक अच्छा है एक बुरा है. अच्छे से 40 रुपए मिल रहा है, बुरे से भी खराब नहीं है, 30 रुपए मिल रहा है. ठीक है, पर खराब और अच्छे से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से लेना देना रहता है. प्रॉब्लम एट हैंड को सॉल्व कर, वो टाइम पास कर रहा है ऊपर जितना भी लिखा है. ठीक है, अब यहाँ ध्यान देते हैं. ईच बेल्ट ए रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम एज दैट ऑफ बी. ओके, तो बेल्ट ए को ना टाइम जो लग रहा है ना बेल्ट ए को, वो कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, 2 times लग रहा है एज कंपेयर टू टाइम फॉर बी. ओके, हैव आई रिटन इट करेक्टली? नो सर. I written it correctly? सर टाइम, हेलो सर. सर 2 into आएगा ना. सर 2 टाइम्स बोला है ना उन लोग ने. सर एग्जैक्ट एक्सप्लेन अगेन सर. नॉट गेटिंग सर. Okay, exact. ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं सर, सिर्फ ग्रेटर देन आएगा. Required. Sir, twice बोला ना. Sir, 2 times. टाइम बी. 2 times बोला है. हाँ, 2 times. 2 times sir, 2 Right है? times. 8 times. Yes. Okay, 2 times बोला है ना, 2 लिखने भूल गया मैं. Okay, हेलो Yes, सर. right, right. सर Yes, sir. हेलो. बोलो. एक्सप्लेन अगेन सर. नॉट गेटिंग. कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए. असद. असद. सुनो ना, असद क्या बोल रहा है वो. ईच बेल्ट ए टाइप का जब बेल्ट बना रहे ना, तो उसको ट्वाइस एज मच टाइम लग रहा है एज कंपेयर टू बेल्ट बी. मतलब सपोज करो बेल्ट ए बन गया, ठीक है, बेल्ट बी बन गया. सपोज करो बेल्ट बी 1 घंटे में बना, तो बेल्ट ए को कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा. समझ रहे, क्योंकि उसको टाइम कितना लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. ओके, और क्लियर बोल रहा है, एग्जैक्ट बोल रहा है, रिक्वायर्स ट्वाइस एज मच टाइम. एटलीस्ट नहीं बोल रहा, एटमोस्ट नहीं बोल रहा है. होप यू आर गेटिंग. वो क्लियर बोल रहा है, ट्वाइस एज मच टाइम. तो अगर इसको ट्वाइस लग रहा है, मतलब अगर इसकी वैल्यू x1 रहेगी, क्या रहेगी इसकी वैल्यू x1, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सॉरी, इसकी वैल्यू अगर मैं x1 रखता हूं, सपोज करो ये x1 बेल्ट बन रहे हैं और ये x2 बन रहे हैं, तो अगर इसकी वैल्यू x2 रहेगी तो इसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, x1 रहनी चाहिए. तो x2 जो रहेगा मेरा, सॉरी, x2 जो रहेगा मेरा क्या रहना चाहिए, 2 times x1. करेक्ट है ना? हाँ ना? यस सर. करेक्ट. उल्टा है सर, उल्टा है. नहीं ना यार, ये गलत है. सर उल्टा है. Sir, x1 will be 2 times x2. Sir, x1 equal to 2 times x2. हाँ, ओके. x1 will be equal to, so sorry, उसने बेल्ट ए बोला है ना, सॉरी, 1 सेकेंड, कहाँ है मेरा एनोटेशन, कहाँ है. x1 will be equal to 2 times x2. टाइम के रिस्पेक्ट में है ये, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं है. किसके रिस्पेक्ट में, टाइम. मतलब T1 को जो टाइम रहेगा ट्वाइस रहेगा एज कंपेयर टू T2. अब आगे बढ़ते हैं. इफ ऑल द बेल्ट्स वेर ऑफ टाइप बी, क्या बोल रहा है,
अगर सब बेल्ट टाइप बी के रहेंगे तो कंपनी कितने बेल्ट बना सकती थी? 1000 बना सकती थी। एक कंडीशन दिख रही है, सब बेल्ट टाइप बी के रहते तो कंपनी 1000 बना देती, बट द लेदर सप्लाई इज ओनली सफिशिएंट फॉर 800 बेल्ट। मतलब बनाना तो मैं 1000 चाहता हूँ कंपनी की तरफ से, पर मेरे पास बेल्ट के लेदर कितना है? सिर्फ 800 बेल्ट का अवेलेबल है। ओके, फिर बेल्ट ए रिक्वायर्स अ फैंसी बकल। बहुत अच्छी बात, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मतलब स्टार्ट हुआ था कंपनी 2 बेल्ट बना रही, एक सुपीरियर एक इंफीरियर है, फिर बोल रहा है कि एक का पैसा इतना मिलेगा, दूसरे का इतना मिलेगा, फिर बोल रहा है ए को डबल टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू बी, फिर बोल रहा है कि अगर सब बेल्ट बी टाइप के रहते तो कंपनी 1000 बना देती, पर आगे जाके बोल रहा है कि अरे कंपनी के पास तो सिर्फ 800 बेल्ट का है एकोमोडेशन, जो सफिशिएंट क्वांटिटी है वो 800 की है लेदर सप्लाई। आगे क्या बोल रहा है? फिर आगे बढ़ रहा है वो, आगे क्या बढ़ रहा है देखते हैं। मेरा कर्सर कहाँ गया? क्या दिख नहीं रहा है कि नहीं है? हाँ, यहाँ। अब बेल्ट ए जो है ना वो फैंसी बकल वाला है, जो अपना ये पहनता है, क्या नाम है, क्या कौन, हिफ्जुर रहमान पहनता है जो बकल, ठीक है। तो बेल्ट ए फैंसी बकल लगते हैं उसको, और वो सिर्फ 400 ही है कंपनी के पास। सर वो कुर्ता पहनता है। अरे पहन नहीं, अच्छा, अरे देखा है मैंने उसको टी शर्ट जीन्स में, खासकर बोनोमी और फ्योर्जा के टाइम तैयार होके आता है बेल्ट पहन के, वो भी फैंसी बकल रहते हैं उसके। मामू सर, मामू। हाँ हाँ, अब सुनो, फैंसी बकल लगता है ए को, और सिर्फ 400 अवेलेबल है। मतलब देखो कंपनी बना तो 1000 सकती है, पर 800 अवेलेबल है लेदर। उसके बाद बेल्ट ए का इशू क्या है? फैंसी बकल है या नहीं, तो फैंसी बकल की वजह से कितने बन सकते हैं? 400 के ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। इनफ बकल्स आर अवेलेबल फॉर मेकिंग बेल्ट्स ऑफ टाइप बी। मतलब कंपनी 1000 बना सकती है। अब 1000 तो बना सकती है, अगर उसको बी का बनाना है तो जितना बनाना है बना सकती है, ओके। बट ए का जब उसको बनाना है तो वो कितना बना सकता है? सिर्फ 400 बना सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहा है ना? अब क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू शो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ टाइप्स ऑफ बेल्ट शुड बी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना ए का बेल्ट बकल बनाऊं, बेल्ट बनाऊं, और कितना बी का बनाऊं कि कंपनी को प्रॉफिट हो। मेथड क्या बोला है? कौन सा मेथड यूज करने बोला है? मेथड देख रहे कौन सा बोल रहा है? सिंप्लेक्स। क्या इसको ग्राफिकल से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। क्यों? यस सर, कर सकते हैं सर, कोई कर और सकते हैं, कर सकते हैं सर, ए बी है। ए बी मतलब कर सकते हैं सर। दो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। तो सिंप्लेक्स से भी दो कर। कंपनी दो है सर, वेरिएबल है सर, वेरी नाइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। वेरी नाइस। अब क्या करना है तुमको पता है? तुमको ये क्वेश्चन पे वर्क, बेल्ट बी जो है ना हाँ, सर, बेल्ट बी जो है वो 800 मैक्सिमम बना सकते हैं ना। वेरी नाइस। कैसे पता चला? तो वहाँ पे लिखा है ना 800 बेल्ट पर डे, उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि और बेल्ट उसने तो बी या बोला ए। अगर बेल्ट 800 बी के रहते तो कंपनी 1000 बना देती, तो 800 की बना सकते हैं। सर बट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कंस्ट्रेंट है ना उतना, वेरी नाइस। 800 का कंस्ट्रेंट है ना। कौन बोल रहा है ये? अदनान, और अदनान पहले कौन था? जी सर। इससे पहले कौन था? सर सर मुर्तजा, हाँ, मुर्तजा बोल रहा हूँ सर। वेरी नाइस मुर्तजा। बना तो 1000 सकता है, बट लेदर कम है, तो बी में 1000 तो बना सकता है, बट बनाएगा कितना? 800, करेक्ट। 800। सफिशिएंट ओनली का मतलब क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन। तुम सोचो, आगे बढ़ते हैं। बेल्ट ए जो है फैंसी बकल चाहिए, 1000 बना सकती है कंपनी, बराबर? नहीं, बेल्ट ए के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया, बस इतना पता है बेल्ट ए को फैंसी बकल लगता है और सिर्फ 400 अवेलेबल है, ओके। और हमको पता है क्वांटिटी लेदर की कितनी है? 800, बराबर ना। बट मेरे पास बकल कितने अवेलेबल है? 400। तो मैं बेल्ट ए कितने कितना बना सकता हूँ? सिर्फ 400 बना सकता हूँ कि नहीं? करेक्ट। अब इनफ बकल्स आर अवेलेबल फॉर मेकिंग बेल्ट्स ऑफ टाइप बी। इसका भी मतलब क्या है वो समझ गए होगे आप, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू डिटरमाइन। आपको बताना है कितना ए बनाऊं कितना बी बनाऊं ये कंडीशन में, ये प्रॉफिट रेंज के साथ 40 और 30 रुपए के साथ, कि मैं हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट में रहूं, ओके ओके। यस सर। Yes, sir. I'll ask anyone, एक एक बंदे को मुझे पूछना है। सबसे पहले उमर है क्या? उमर खान, हाँ उमर, सर, वो डिप्लोमा वाला, हाँ सर, मैं हूँ सर। ओके। आर यू गेटिंग? यस सर। अपाक, यस सर। ओके। अल्तमश, यस सर। फैसल, फैसल, Yes, sir. Understood. ओके, वेरी नाइस। मैलाम समझ रहा बेटा अभी? यस सर। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू? नंदिता, नंदिता, आर यू गेटिंग? Yes, sir. वकास, यस सर।
Okay. Okay. What I'm expecting that you will solve both the questions, the earlier question that I gave, then this question, and I will let you share the screen. Okay. I will let you share the screen and you can show it on your book also. Just take a landscape photo of that. That would be very better. If you are able to solve it by yourself. Don't ask anyone. Even if you fail, it's okay, but try it by yourself. Okay, try it by yourself. It's a good question. ये क्वेश्चन बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नोट्स में मिलेगा जो मैंने दी थी लास्ट टाइम. तो उसको कॉपी मत करो, तुम खुद से ट्राई करो. माशाल्लाह तुम्हें समझ भी चुका है, तुम कर भी सकते हो. ओके, कल एक लेक्चर है, अगर तुम चाहते हो तो कल नहीं रखता मैं. कल एक लेक्चर रखा था ना मैंने, मैं कल लेक्चर नहीं रख रहा हूँ. इज इट ओके? चैट पे बोल दो बस. कल के लिए नहीं रखता. यस हाँ ओके रहेगा सर. यस सर. वीक से रखते हैं एक्स्ट्रा, ये वीक थोड़ा चिल कर लो. ओके चलो चलो, वी आर डन. चलो, यस सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सुबह का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ. ओके, ये लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा. सुबह का नहीं हुआ, चलेगा ना? यस सर. ओके, हाँ चलेगा सर, सुबह का इजी था. if anyone was absent for the morning lecture they can ask me, I'll help them. Okay, चलिए. अस्सलाम वालेकुम. I'll share वालेकुम सलाम. sheet. सलाम. Mark your attendance on that page. Okay, सर इतने ज्यादा क्वेश्चन मत दो सर. नहीं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. दो क्वेश्चन सर क्विज में अटेंडेंस लिंक में सर. अटेंडेंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ. तो ये वाला जो क्वेश्चन था अभी लास्ट, जो क्वेश्चन आपने दिए थे वो आपने सेंड किया है व्हाट्सएप पे? ये जो क्वेश्चन है नहीं, तू क्या अभी हाँ सर, एक बार प्लीज स्क्रीन करके मैं स्क्रीनशॉट ले लेगा. शेयर कर रहा हाँ हूँ. सर, स्क्रीनशॉट नहीं मारा. ये पूछा कब है? दिसंबर 16 में पूछा है. 1 second, give me. I don't want to delete it. Okay, you can see everything. Have you taken? Have you taken? यस सर. यस सर. If they are not, Yes, sir, taken. यस सर. चलिए अस्सलाम वालेकुम. सलाम. क्या हंस क्यों रहा है अब्दुल रहमान? अच्छा, he was okay, okay, चलो.